तो वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज चैप्टर 16। लेट्स रीड लाइन बाय लाइन, देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज इन हिंदी। ठीक है, तो इस चैप्टर 16 की बात करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हेंचर्ड और फारफ्रे का जो रिलेशनशिप है यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किसका कैरेक्टर चेंज होता है। So let's get started. Or on this account, I'm reading it from the first line. On this account, Henchard's manner towards Farfrae insensibly became more reserved. He was courteous, too courteous, and Farfrae was quite surprised at the good breeding which now for the first time showed itself among the qualities of man he had hitherto thought undisciplined, if warm and sincere. अब यहाँ पर क्या हो गया, जो पिछले चैप्टर्स में आपने देखा होगा, सुना होगा, जो हेंचर्ड है पहले तो खूब दोस्तों की तरह जाता था उसके पास कि हेलो फारफ्रे, हाउ आर यू, चलो कंधे पे हाथ रखा हुआ है। बिजनेस आवर्स के बाद भी उसके घर जा रहा है कि हेलो, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, लेट्स हैव सम ड्रिंक्स। जो यारी दोस्ती होती है दिल खोल के। लेकिन पिछले चैप्टर में जो हुआ उसके बाद से अब वो एकदम डिसिप्लिन्ड हो गया है। अब वो हेलो, हाउ आर यू, दिस वर्क, दैट वर्क, डन, नॉट डन, बस यहीं पर है। वो हाथ जोड़ करके रहता है, हेलो हाय करता है। हाथ तो नहीं जोड़ता होगा, बट आप समझ सकते हैं कि ही बिकेम वेरी जेंटल विद हिम। यहां से दोस्ती खत्म हो गई। द कॉन्फेक्टेड seldom or never again put his arm upon the young man's shoulder so as to nearly weigh him down with the pressure of mechanized friendship. अब वो उसके कंधे पर हाथ ही नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि अब वैसी दोस्ती नहीं रही भैया। He left off coming to Donald's lodgings and shouting into the passage, "Hoy, Farfrae boy, come and have some dinner with us. Don't sit here in solitary confinement." But in the daily routine of their business, there was little change. जैसा मैंने अभी तक बताया, बस वही। Thus their lives strolled on till a day of public rejoicing was suggested to the country at large in celebration of national event that had recently taken place. अब एक उत्सव का दिन आने वाला है, ठीक है? For some time, Casterbridge, by nature slow, made no response. Then one day Donald Farfrae broached the subject to Henchard by asking if he would have any objection to lend some brick clothes to himself and a few others who contemplated getting up an entertainment of some sort on the day named, required shelter for the same, to which they might charge admission at the rate of so much a head. अब यहाँ पर जो उत्सव का दिन है, सेलिब्रेशन का डे है, वहाँ पर जो डोनाल्ड फारफ्रे है, वो हेंचर्ड से पूछता है कि आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जिससे हम थोड़ा सजावट के लिए यूज़ कर सकें, एंड मुझे और भी साथियों की ज़रूरत है। जिस दिन रिजॉइसिंग का डे होगा, सेलिब्रेशन का डे होगा, उस दिन मुझे शेल्टर वगैरह बनानी है, टेंट वगैरह बनाना है और वहाँ पर हम कुछ एंटरटेनमेंट का सिस्टम करेंगे और एंटरटेनमेंट का सिस्टम करके वहाँ पर से हर एक आदमी की एंट्री के लिए पैसे ले लेंगे। जवाब आता है, हैव एज़ मैनी क्लोथ्स एज़ यू लाइक, हेंचर्ड रिप्लाइड। जितने कपड़े चाहिए ले लो, ठीक है? When his manager had gone about the business, Henchard was fired with emulation. It certainly had very remiss of him as mayor, he thought, to call no meeting at this to discuss what should be done on this holiday. But Farfrae had been so cursed quick in his movements as to give old-fashioned people in authority no chance of the initiative. However, it was not too late, and on second thoughts he determined to take up his own shoulders the responsibility of organizing some amusements if other councilmen would leave the matter in his hands. To this quite readily agreed, the majority being fine old crusted characters who had a decided taste for living without worry. अब यहाँ पे ये जो हेंचर्ड है, इसके दिमाग में भी एक आइडिया आता है, ठीक है? इसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि ये तो एंटरटेनमेंट कराएगा, सब लोग आएँगे, सब लोग इसको देखेंगे, सब लोग इसको करेंगे, वाह! क्या उत्सव है डोनाल्ड फारफ्रे। अब पॉपुलैरिटी किसको मिलेगी? फारफ्रे को मिलेगी। किसको मिलनी चाहिए? हेंचर्ड को मिलनी चाहिए। मेयर कौन है? हेंचर्ड है। अब हेंचर्ड के दिमाग में प्लान आता है कि मैं भी एक कुछ ना कुछ तो करके रहूँगा। So, Henchard set about his preparation for really brilliant thing, such as should be worthy of the venerable town,
As for Farfrey's little affair, Henchard nearly forgot it. Once, except once now and then when, on it coming into his mind, he said to himself, charge admission at so much a head, just like a Scotchman. Who is going to pay anything a head? The diversions which the mayor intended to provide were to be entirely free. हैंचर्ड ने सोचा, ये क्या करेगा, ये पैसे लेगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं भी यही काम करूंगा, लेकिन मैं पैसे नहीं लूंगा। तो लोग क्या करेंगे, जहां पैसे नहीं होंगे वहां आएंगे। तो ये हैंचर्ड के दिमाग में ये चीज थी। He had grown so dependent upon Donald that he could scarcely resist calling him in to consult. But the sheer self-coercion he refrained. No, he thought. Farfrae would be suggesting such improvements in his damned luminous way that in spite of himself, Henchard would sink to the position of second fiddle and only scrape harmonies to his Menchard's talent. अब यहां पर एक ऐसी सिचुएशन है कि माइकल हेंचर्ड जो भी काम करता है डोनाल्ड फारफ्रे से सजेशन लेता है, बिकॉज उसके सजेशन काम करते हैं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट अपनी तरफ से क्यों करवा रहा है? वो इसलिए करवा रहा है कि भैया सारी लाइमलाइट मेरे को मिले, डोनाल्ड फारफ्रे को कुछ ना मिले। अब वो डोनाल्ड फारफ्रे से सजेशन लेगा तो लोग तो यही बोलेंगे ना कि इसने किया, लेकिन डोनाल्ड फारफ्रे ने इसको सजेशन किया तब जाकर के हुआ। तो वो सजेशन डोनाल्ड फारफ्रे से बिल्कुल नहीं लेगा। नेक्स्ट, everybody applauded the mayor's proposed entertainment, especially when it became known that he meant to pay for it all himself. मेयर ने कहा कि मैं एंटरटेनमेंट कराऊंगा। जितने भी सदस्य थे उसके आसपास के सबने कहा कराइए कराइए सर कराइए, क्योंकि पैसे तो कौन देगा, मेयर देगा। तो बस औरों को क्या दिक्कत होनी है, जब तक पैसा दूसरे की जेब से जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं भैया। क्लोज टू द टाउन was an elevated green spot surrounded by an ancient square earthwork. अच्छा, ये जो पूरे पैसेज में है ना, मैं थोड़ा आप इसको मीनिंग समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दे सके। ये एक जगह का चुनाव करता है, ठीक है। अब ये एक ऐसी जगह का चुनाव करता है जो थोड़ी एलिवेटेड है और जहां से सब कुछ दिखता है, जो जहां से पूरा कैस्टर ब्रिज दिखता है, ठीक है। और अगर वहां पर कुछ उत्सव होगा तो कैस्टर ब्रिज से भी दिखेगा, ये भी चीज है। उसने क्या किया, ही एडवर्टाइज्ड अबाउट द टाउन, उसने पोस्टर्स निकाल दिए, ठीक है। अब ये इस पैराग्राफ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ है। उसने एक तो पोस्टर्स निकाल दिए पिंक कलर के, और उस पोस्टर पे क्या छपा हुआ है, खेल खेले जाएंगे हर तरीके के, ठीक है। और उसने कुछ लोग रख दिए अपने अंडर कि तुम ये करोगे वो करोगे, ठीक है। पोल्स होते हैं, पोल्स, ठीक है, उस पर ग्रीस लगाई, ठीक है, ताकि उस पर चढ़ना मुश्किल हो। और पोल के ऊपर रखा इनाम कि मतलब कंपटीशन कराएगा कि जो चढ़ेगा, चढ़ेगा कैसे, क्योंकि वो तो फिसलन हो गई है ग्रीस से, तो जो चढ़ेगा ऊपर निकालेगा जो भी मीट मांस रखा होगा, हैंड्स, वो उसके हो जाएंगे। उन्होंने जैसे नदी बह रही है तो नदी के किनारे भी पोल्स रख दिए, और पोल्स के ऊपर रख दिए जिंदा, क्या है, क्या रखा है इसने, इसने रखा है पिग्स। तो जो उस पर चढ़ते चढ़ते जाएगा एंड पिग्स को पकड़ लेगा तो उसका पिग हो जाएगा, जबकि बड़ा मुश्किल गेम है लेकिन मजा बहुत आता है। सब लोग देखते हैं, चला 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 चला। इट्स लाइक शोज आते थे ना, जैसे यहाँ पे तकेशीज कासल, उस टाइप के शो हैं, उस तरीके का कुछ करने का किया इसने। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बॉक्सिंग, रेसलिंग, ड्राइंग ब्लड, जनरली एवरीथिंग वाज देयर। सेक्स फॉर जंपिंग, बोरे में जाकर के अपने को डालना, अपने को बोरे के अंदर डालना, फिर जंप करना, ये सारे सारे गेम्स रखे हैं उसने। दिमाग देखो, सब कुछ रखा है, क्यों? ताकि फारफ्रे का जो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है वो फिनिश हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने तो बड़ा अट्रैक्टिव रखा है सब कुछ, पोल वोल लगा करके रखे हैं, और जहां पर पीने का भी प्रबंध है, सब कुछ। अब इसने क्या किया है, फारफ्रे ने कुछ नहीं किया। उसके पास जो थोड़ा सा सामान था उसने उसी को यूज किया, कुछ नहीं किया।
ना किसी को बताया, ना कुछ किया, बस बोल दिया होगा लोगों को कि भाई आ जाना प्रोग्राम है, ये करेंगे, वो करेंगे, थोड़ा डांस-वांस का प्रोग्राम होगा, दैट्स इट। अब अगले दिन भाई जिस दिन प्रोग्राम था द मॉर्निंग केम, ठीक है? पिछले दिन तो भैया मॉर्निंग ठीक थी, लेकिन बारिश मौसम होने लग गया। अब हैंचड़ ने कहा मैंने तो इतनी तैयारी कर दी, अब तो मैं इसको कुछ कहीं ले जा भी नहीं सकता, मैं क्या करूँगा? तो हैंचड़ कुछ नहीं कर सकता था। मतलब ऐसा था कि मतलब आप केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और आप गलती से हिस्ट्री का पढ़ के चले गए और आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो और हिस्ट्री का पढ़ के आए हो तो केमिस्ट्री का पेपर आ गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है? टाइम इज़ लॉस्ट। तो हैंचेट की भी वही सिचुएशन है। उसने तैयारी किसी और चीज़ की थी और हो कुछ और गया है, ठीक है? तो अ नंबर ऑफ पीपल हैड हेरोइकली गैदर्ड इन द फील्ड, लोग भी आए, लेकिन 3 बजे तक इतनी बारिश आ गई, बाप रे बाप! लोग कुछ थे। तो इसका सार बता दूँ मैं क्या हुआ, ठीक है? जो पोल्स थे, उनसे ग्रीस टपक गई क्योंकि बारिश आ गई। कुछ जो लास्ट में कुछ लोग बचे थे, वो टेंट वगैरह उखाड़ने वाले लोग थे, ठीक है? तो सारा जो खाना-वाना बनाया था, सब वेस्ट चला जाता, लेकिन हेंचर्ड ने बोला कि यार अब मेरा नुकसान हो गया, कोई लोग नहीं आए, तो अब ये गाँव वालों में बाँट दो, ठीक है? अब शाम के 6 बजे तक उससे पहले ये हुआ कि द ब्रीज़ शूक फ्रॉम द ट्रेंट इट सीम्ड पॉसिबल टू कैरी आउट द प्रोग्राम आफ्टर ऑल, द awning वाज़ सेट अप। अच्छा, 6 बजे तक बारिश खत्म हो गई थी, तो हेंचर्ड ने सोचा शायद प्रोग्राम हो जाए, ठीक है? तो कुछ हो ना हो लेकिन डांसिंग तो ज़रूर होगी। लेकिन सब लोग कहाँ चले गए? "Where are the folks?" said Henchard. "The shops are all shut. Why don't they come?" हेंचर्ड बोलता है, "दुकानें बंद हैं, मेरे यहाँ पे प्रोग्राम चालू हो गया, लोग हैं तो हैं कहाँ?" तब किसी ने बोला, "They are at far frays of air in the West Walk," answered a councilman who stood in the field with the mayor. उसके काउंसलमैन ने कहा कि फारफ्रे ने जो इंतज़ाम किया है, वहाँ पर लोग गए हुए हैं। अब तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या हो गया? फिर वो डिसाइड करता है कि अ, इसको जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये पढ़ें। द एंटरटेनमेंट क्लोज्ड, द फूड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर पीपल ऑफ द टाउन। इन अ शॉर्ट टाइम नथिंग वाज़ लेफ्ट इन द फील्ड बट अ फ्यू हर्डल्स, द टेंट्स एंड द पोल्स। ये चीज़ें हो गई। Henchard returned to his house, had tea with his wife and daughter, and then walked out. अच्छा, इसके बाद वो घर आया, ठीक है? चाय वगैरह पी, फिर उसने सोचा कि यार एक बार ज़रा देख आएँ कि भई फारफे कर रहा है तो क्या कर रहा है? फारफे से नफ़रत तो करने लग गया था। लेकिन होता है ना कि हम जिससे नफ़रत करते हैं उसकी भी आईडी ज़रा देख ही लेते हैं। फ़ेसबुक आईडी हो, इंस्टाग्राम आईडी हो, स्टॉक तो कर ही लेते हैं। तो हेंचर्ड भी स्टॉक करने गया कि उसका कॉम्पिटिटर कर क्या रहा है। उसने क्या किया, उसने पोल्स का इस्तेमाल नहीं किया है अपने अपने टेंट को बनाने के लिए। उसने जो पेड़ हैं, उन्हीं के ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह डाल दिया, तो पेड़ों से उसको एक सहारा मिल गया कि तेज़ हवा भी आई, तो उसका टेंट उड़ा नहीं। जबकि जो हेंचर था, उसका टेंट तो पूरा ही उड़ गया था। आपने देखा होगा शादी बारातों में कि कैसे उड़ जाता है वो। एंड द तो ये चीज़ें थी, तो उसने देखा कि सब कुछ अलग था। वहाँ पर डांस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऑल द टाउन क्राउडेड टू द वॉक। देखो भई, पूरा टाउन आ गया, सच अ डिलाइटफुल आइडिया ऑफ अ बॉलरूम नेवर हैविंग अकर्ड टू द इन्हाबिटेंट्स बिफोर। वहाँ पर जो इंतज़ाम किए गए थे, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ पर एलिज़ाबेथ जेन भी थी, उसकी मम्मी भी थी एंड वहाँ पर डांस हो रहा था। मिस्टर हेंचर्ड्स रिजॉइसिंग कुडन्ट से गुड मॉर्निंग टू दिस। अच्छा, वहाँ पर सब लोग नाच गा रहे थे, ठीक है? सब कुछ अच्छा था। वहाँ पर हेंचर्ड भी खड़ा था और लोग बोल रहे हैं कि भई हेंचर्ड ने जो काम किया है, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब उसको इतना गुस्सा आ जाता है। अब सोचो उसकी हालत क्या होगी? The mayor answered the people said it was only in such things as those that the mayor was wanting. Where would his business be if it were not for this young fellow? अब उसके बाद ये भी कह रहे हैं लोग कि भाई जो फारफ्रे है, फारफ्रे की वजह से ही तो मेयर का बिज़नेस हुआ है। फारफ्रे तो एक अनपढ़ आदमी है। सॉरी, फारफ्रे तो एक समझदार और एक पढ़ा-लिखा आदमी है। हेंचर्ड पुराने ज़माने का है और उसका बिज़नेस खराब चल रहा था क्योंकि ये पुराने तरीके अपना रहा था। इसको ना पढ़ना-लिखना आता है, लेकिन है फारफ्रे को पढ़ना-लिखना सब आता है।
He used to reckon his sacks by chalk strokes all in a row like garden palings, measures his risks by stretching with his arms, weigh his trusses by a lift, judges hay by a chaw, and settle the price with a curse. ठीक है, मतलब अनपढ़ों वाले काम करता था. But now this accomplished young man does it all by ciphering and mensuration. Ciphering and mensuration मतलब पढ़ लिख के आया है. ठीक है. अब माइकल हेंजर्ट को गुस्सा आ जाता है. ठीक है. अब वो जहाँ सब लोग नाच रहे थे, वहां जाकर के बहुत ही अच्छा डांस चल रहा है. वहां पे वो औरतों के साथ डांस कर रहा है. एंड ही इज द फेवरेट ऑफ ऑल द लेडीज इन द टाउन. वो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा है. बहुत ही अच्छी मेलोडी चल रही है वहां पे. एंड वहां पर ये क्या बोलता है, लुक हियर फारफ्रे, I'll go to the Port Brady Great Market tomorrow myself. You can stay and put things right in your clothes box and recover strength to your knees after your vagaries. देखिए ये लाइन तो ना आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, क्योंकि ये फारफ्रे का कैरेक्टर, ओ हेंचर्ड का कैरेक्टर बताती है. वो क्या कह रहा है कि अपना सामान बांधो, निकलो यहां से, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं. अब आसपास के जो खड़े थे वो कह रहे भाई क्या कर रहे हो तुम, भाई उसकी वजह से तो तुम्हारा काम चला है, अब क्या तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है. और भी लोग बोलते हैं यू शुड हैव टेकन अ लीव आउट ऑफ हिज बुक. वो कहता है कि एक लॉयर कहता है कि भाई जैसा वो कर रहा था वैसे तुम भी करते, एक शेल्टर्ड प्लेस में अपना इंतजाम करते, तो ये बारिश वारिश तुम्हें खराब नहीं होती. लेकिन उसने अच्छा काम किया इसलिए उसने तुमको बीट किया है. अब तो उसको गुस्सा आ जाता है. वो कहता है कि वो तुमसे आगे निकलेगा. हेंचर्ड कहता है कि नहीं, मेरे से आगे नहीं निकलेगा वो, क्योंकि कल से वो इस जगह को छोड़ के जा रहा है. मिस्टर फारफ्रे's time as my manager is drawing to a close, isn't it, Farfrey? The young man, who could now read the lines, folds of Henchard's strongly traced face as if they were clear verbal inscriptions, quietly assented, and when people deplored the fact, asked why it was, he simply replied that Mr. Henchard no longer required his help. Mr. Henchard ने क्या बोल दिया? Mr. Henchard no longer required his help. अब हेंचर्ड वेंट होम सेटिस्फाइड. उसने अपना गुस्सा निकाल दिया तो थोड़ा सेटिस्फाइड है. लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ? व्हेन हिज जेलस टेम्पर हैड पास्ड अवे, हिज हार्ट सैंक विद इन हिम एट व्हाट ही सेड एंड डन. ही वाज द मोर डिस्टर्ब्ड व्हेन ही फाउंड दैट दिस टाइम फारफ्रे वाज डिटरमाइंड टू टेक हिम एट हिज वर्ड. अब मतलब क्या हो गया, जब उसका गुस्सा शांत हो गया अगली मॉर्निंग में, अब हेंचर्ड को समझ में आ गया कि अब जो मैंने बोला है उसके रेपरकशंस बहुत लंबे होंगे. क्या रेपरकशंस होंगे अगले चैप्टर में बात करेंगे.